بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری خوشی دودھ کے ابال کی ماند چھلکنے کے بعد بیٹھتی چلی گئی۔ سکلین کا مخاطب اگرچہ میں ہی تھا، لیکن وہ مجھ پر نہیں، میرے غائبانہ وجود پر برس رہا تھا، گویا ہواؤں پر اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، کیونکہ اور بہت سے لوگوں کی طرح اسے بھی میرا وجود دکھائی نہ دے رہا تھا، حالانکہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سکلین نے پرس بھرنے کے بعد پرس پلنگ کے نیچے کسکا دیا اور فلیٹ کی چابیاں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اب مجھ پر اپنی کیفیت مکمل طور پر عیاں ہو چکی تھی۔ میں اس دنیا کے تمام زندہ لوگوں کے لیے عدم وجود ہو چکا تھا، ان کی زندگیوں سے اس طرح خارج کر دیا گیا تھا جیسے مکھن پر پڑا بال نہایت سہولت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میری عقل اب تک بھی اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھی۔ اب مجھے اس کڑوی سچائی کو قبول کرنا ہی پڑے گا کہ میری ہستی ایک ندیدہ وجود پا چکی تھی۔ اب میں محض ایک سایہ تھا۔ شاید میں نے خود کو سایہ بھی غلط کہا تھا، کیونکہ بہرحال سایہ بھی دکھائی دیتا ہے، جبکہ میرا وجود تو سرے سے کسی کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس پر رونق دنیا کے لیے میرا وجود اندھیرے کی چادر میں چھپا دیا گیا تھا۔ میرا وجود غیر حقیقی ہو چکا تھا۔ پہلی بار خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کر گئی۔ میں اپنی بے بسی پر چیخنا چاہتا تھا، زور زور سے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، لیکن باوجود لاکھ چاہنے کے میں ایسا بھی نہ کر سکا۔ فائدہ ہی کوئی نہ تھا۔ مین گیٹ پر پہنچ کر میں نے بے پناہ نفرت سے چوکیدار کو گورا۔ میرا غصہ عروج پر پہنچ گیا اور میں نے بے اختیار ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ میرے مکے کی ضرب اس قدر قوت سے بھرپور تھی کہ اگر میرا وجود غیر مرئی نہ ہوتا تو چوکیدار کا نہ صرف جبڑا چٹک کر رہ جاتا بلکہ اس کی بتیسی بھی ٹوٹ کر زمین پر آ پڑتی، لیکن اس حالت میں میری ضرب بے اثر ثابت ہوئی۔ چوکیدار پر میرے مکے کا رتی بار اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا اپنی گنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا۔ سڑک پر پہنچ کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں چہرہ آسمان کی طرف کیے اپنی پوری قوت سے چیخ پڑا اور کافی دیر تک چیختا ہی رہا، لیکن کسی ایک بھی انسان نے میری طرف توجہ نہ دی۔ میری درد کرب میں ڈوبی چیخیں نہ سنی۔ میرے پورے وجود میں درد جیسے گل کر رہ گیا۔ ممکن ہے 1 مہینے کی مدت زیادہ مدت نہ کہلاتی ہو، لیکن میرے لیے یہ 30 دن میری 35 سالہ زندگی پر بھاری تھے۔ 1 مہینہ جو میں نے اپنے عدم وجود کے ساتھ گزارا، بلکہ کاٹا میرے لیے کسی جہنم کے عذاب سے کم نہ تھے۔ میں انسانوں سے بھری اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ میرے جیسا کوئی دوسرا نہ تھا جس سے 2 باتیں کر کے میں اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر سکتا۔ میں خاموش رہ کر اکسا چکا تھا۔ میری زندگی کا کوئی معمول نہ رہا تھا۔ میرا جہاں دل چاہتا میں رات بسر کر لیتا، جب دل کرتا کسی ہوٹل میں گھس کر کسی کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا۔ میں جو چاہتا کھا سکتا تھا، ہر چیز بآسانی اٹھا سکتا تھا۔ مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، اور بھلا مجھے روکتا بھی کون؟ میں کئی بار اپنے گھر بھی گیا۔ میرے ماں باپ اور میری بہنیں میرے بغیر بہت مزے سے رہ رہے تھے، بلکہ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ میری اچانک گمشدگی نے ان پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ انہوں نے پولیس میں میری اچانک گمشدگی کی رپورٹ تک لکھوانے کی زحمت گوارا نہ کی، جیسے میں ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا تھا۔ شاید سچ ہی تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کے اس رویے سے جو ذہنی اذیت پہنچی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ 1 ماہ کے اختتام پذیر ہونے تک میں بری طرح ذہنی اور جسمانی ابتری کا شکار ہو چکا تھا۔
मेरे कपड़े मैले हो रहे थे। मैंने 1 महीने से नहाना तो दूर की बात, मुंह तक धोने की सहमत ना की थी और ना ही मुझे इन बातों की कोई परवाह थी। जिस कदर अजियत मुझे अपने गायब हो जाने पर महसूस होती, उससे कहीं बढ़कर अजियत मुझे अपने घर वालों को खुश और मुतमिन देकर पहुंचती। मुझे अपने घर वालों के रवैये ने गीले कपड़े की मांद निचोड़ कर रख दिया था। मेरे बगैर सब खुश थे, हर एक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। 1 महीना जो मैंने इस अदम वजूद की भट्टी में दहकते हुए गुजारा, उस अजियत को मैं चंद लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरा मुस्तकिल कोई ठिकाना ना था, बस जो जगह अच्छी लगती वहां 2-4 दिन बसर करके आगे बढ़ जाता। आजकल मैंने गरीब आबाद की एक पुराना फर्नीचर बनाने की दुकान में सुकूनत अख्तियार कर रखी थी। मैं दुकान में रखे एक फुल साइज सोफे पर लेटा सीटी पर किसी नगमे की धुन बजा रहा था कि अचानक मेरे अंदर किसी को बुरी तरह पीटने की ख्वाहिश ने सार उठाना शुरू कर दिया। मैंने लाख चाहा कि अपनी इस ख्वाहिश को दबा लूं, लेकिन जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी ये हवानी ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती चली गई। मैं बेख्तियार सोफे से उठ बैठा और अपनी नजरें आते जाते लोगों पर मरकूज कर दी। मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपनी हवानी ख्वाहिश की बीन चढ़ा सकता। हालांकि इस तलाश का कोई फायदा ना था। मेरी कुव्वत हर ठोस और हकीकी वजूद पर बेअसर ही होती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तलाश तर्क ना की और अपनी नजरों के घोड़े दौड़ाता रहा। जल्दी मेरी निगाहों ने अपने हदफ को पा लिया। वो एक मजबूत तन व तोश का मालिक इंसान था जो एक सुजुकी गाड़ी से पीठ टेके खड़ा अखबार का सरसरी जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर फैली इत्मीनान की सुर्खी मेरे एहसास कमतरी को चोट पहुंचाने लगी। मैं ये सोचकर गुस्से से उठ खड़ा हुआ कि जब मैं इस कदर बेसुकून था तो कोई मेरे सामने इतने सुकून और इत्मीनान से क्यों खड़ा था। मैंने अपने सीधे हाथ के पंजे की उंगलियां पींचकर मुक्का बना लिया और उस मुक्के में पूरे जिस्म की कुव्वत मुंतकिल करके मैं उसके चेहरे का निशाना लिए बंदूक से निकली गोली की तरह उसकी तरफ लपका। ऐन उस लम्हे जब मैं उसके चेहरे पर मुक्का जड़ने वाला था, उसने मेरी तरफ देखा और अगले लम्हे उसने अपना चेहरा एक तरफ कर दिया। मेरा वार खाली किया, मेरा मुक्का हवा में लहरा कर रह गया, लेकिन मुझे बेपनाह हैरत सौंप गया। ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी थी। 100% इसने मुझे मुखातब करके गुस्से से कहा और अगले लम्हे मेरा गिरेबान उसकी मुट्ठी में था। मैं गैर यकीनी से उस शख्स को देखे गया। ओह, तुम्हारे कपड़ों और जिस्म से किस कदर बदबू आ रही है। क्या तुम सिर्फ ईद के ईद ही नहाते हो। उसने मुझे खुद से परे धकेला और जेब से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ करने लगा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए थे, जबकि मैं बहुत हैरान था। क्या तुम मुझे देख सकते हो, मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या मैं सच सच तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? मैं उसकी तरफ बढ़कर इंतहाई बेचैनी, बेसब्री और गैर यकीनी से पूछने लगा। मुझे हाथ मत लगा और मुझसे दूर रहकर बात करो। तुम्हारे वजूद की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। उसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। मुझे उसके सख्त रवैये से कोई दुख ना पहुंचा। मेरे लिए यही बात बाइसे मुसरत थी कि वो मुझे देख सकता था, मेरी आवाज सुन सकता था। क्या तुम मुझे वाकई देख सकते हो? मैं गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला था। हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और तुम्हारी आवाज भी सुन सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझे देख सकते हो और मेरी आवाज सुन सकते हो। लेकिन हम दोनों को कोई दूसरा नहीं देख सकता और ना ही कोई हमारी आवाज सुन सकता है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने नासमझी से दरियाफ्त किया। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी ना थी। मुझ जैसा कोई दूसरा भी गैर मरी वजूद इस जमीन पर हो सकता है। उस शख्स ने नागवार नजरों से देखा और जाने की नीयत से कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। रुको प्लीज, 1 मिनट ठहरो। मैं अपनी हैरत के जाल से रिहाई पाते ही उसकी तरफ लपका। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं पहले ही बहुत अजियत उठा चुका हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, कई ऐसे सवालात पूछने हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने लपक कर उसका एक बाजू पकड़ लिया। मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। तुम नहा धोकर साफ सुथरे होकर मेरे ठिकाने पर चले आओ। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। ये कहकर उसने मुझे अपने ठिकाने से आगाह किया और आगे बढ़ गया। मुझ पर एक जुनून
जुनून सा सवार हो गया। मैं फौरन अपने घर पहुंचा और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर उस शख्स के ठिकाने की जानब रवाना हुआ जिसने अपना नाम एयाज अली बताया था। गुड खासे हैंडसम शख्स हो तुम, बैठ जाओ, एयाज अली ने कहा। मैं उसके सामने वाले सोफे पर टिक गया। उसने आवाज देकर किसी को पुकारा और फिर उसे 2 कप चाय लाने को कहा। मुझे अब ये समझने में देर नहीं लगी कि एयाज अली की पुकार पर आने वाला भी हमारी तरह का एक गैर मरी वजूद था। हाँ, अब बताओ तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हो? मैं बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरा हाल तो देख ही लिया था। गुज़श्ता 1 माह से मैं तन्हा और उदास सा था। कोई ऐसा ना था जो मुझे देख सकता, मेरी आवाज सुन सकता, और ना ही मैं खुद किसी को अपने होने का एहसास दिलाने में कामयाब हो पा रहा था। मैं जीते जी ही मर चुका था। मैंने कई बार खुदकशी करने की भी कोशिश की, लेकिन ना तो कोई फंदा मेरा गला दबा सका और ना ही कोई जहर मेरे वजूद में सरायत कर सका, और तो और खंजर या चाकू भी मुझे जख्मी ना कर सका। पूरा 1 महीना मैंने इसी अजियत में काट दिया और आज मुझे तुम मिल गए। एक ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे देख सकता है, मेरी आवाज सुन सकता है, बल्कि मेरे जैसा ही है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या चक्कर है? मैंने नहायत ही करब अंगेज लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। एयाज अली नहायत गौर तवज्जो से मेरी हर बात सुन रहा था। इस सारे चक्कर की वजह बड़ी ही पुचीदा है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जवाब तुम्हें मुतमिन कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। उसने ये कहकर चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की और फिर कहना शुरू किया, हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो गैर मरी हैं। इन गैर मरी ताकतों ने चारों तरफ से हमें घेर रखा है। अपनी जिंदगी के शबो रोज से गुजरते हुए ये गैर मरी ताकतें हमें एक सांचे में धकेल कर उस मुकाम तक ले आई हैं जहां से हम गर्दोपेश में रहने वाले इंसानों की नजरों से गायब हो जाते हैं। एयाज अली एकदम से फिर खामोश हो गया। ये गैर मरी ताकतें सिर्फ उन इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेती हैं जो जिंदगी के किसी भी मामले में बेकार साबित हो रहे हों या फिर जिनकी हस्ती दूसरों के लिए परेशानी या ज़हनी अजियत का बाइस बनी हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं बेबसी से इकरार में गर्दन हिलाकर रह गया। मैं जान गया था कि एयाज अली क्या कहना चाह रहा है। मुझे गैर मरी सांचे में इसलिए ढाल लिया गया था कि मेरी हस्ती हर किसी के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई थी। क्या हम जैसे और भी लोग हैं? मैं बेख्तियार पूछ बैठा। बिल्कुल बहुत हैं, बल्कि बहुत सारे हैं, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। एयाज अली ने जवाब दिया। चाय आ गई और हम चाय के घूंट भरने लगे। तुम तो एक अच्छे इंसान दिखाई देते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने चाय खत्म करने के बाद दरियाफ्त किया। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरी हस्ती से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरी जात से किसी को कोई फायदा भी ना। मैं एक बेकार और जिंदगी में बिल्कुल नाकाम इंसान था। यही वजह थी कि मैं दूसरों की नजरों में बेकार होकर रह गया। एयाज अली ने दुख से जवाब दिया। दरअसल हम जैसे लोगों का होना या ना होना एक बराबर होता है। हमारे अचानक गायब हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं ये सोचता हूँ कि जाने क्यों हम इंसान अपनी सलाहतों को बेकार बैठकर या फजूल कामों में उलझकर जाया कर देते हैं। खुदा ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहत जरूर रख छोड़ी है, लेकिन हम अपनी सलाहतों का इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। एयाज अली ने कहा, क्या हम सारी जिंदगी यूं ही रहेंगे? मैंने एक अनजाने खौफ के तहत दरियाफ्त किया। और हम कर भी क्या सकते हैं मेरे भाई, सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के। मौत ही हमें इस कैफियत से निजात दिला सकती है। मैंने तो अपनी इस जिंदगी से समझौता कर लिया है, अब तुम भी समझौता कर लो। एयाज अली ने बेहद मायूसी से कहा, लेकिन इससे निजात की कोई तो राह होगी। मैंने एक उम्मीद से दरियाफ्त किया। हाँ, एक रास्ता है। एयाज अली के इस जवाब ने मेरे दिल की मुरझाई हुई कली को फिर से तरोताजा कर दिया। एयाज अली अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमिन था। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन मैं इस हालत में पूरी जिंदगी नहीं काट सकता था। मुझे इस जिंदगी से नफरत थी। जिन गैर मरी ताकतों ने हमें इस सांचे में डाला था, उन्होंने दरअसल हमसे अपना इंतकाम लिया था, एक भयानक और अबरतनाक इंतकाम। हालांकि ये हमें किसी और तरीके से भी सजा दे सकते थे, लेकिन बेबस करके मारने में शायद ज्यादा लुत्फ आता है।
آج اس کیفیت میں مجھے پورا 1 سال بیت چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر میں نے اپنے جیسے بہت سے لوگ دیکھے، ان سے ملا اور ان سے باتیں بھی کی۔ میں نے اپنے جیسے ہر انسان کو اپنے حال میں خوش اور مطمئن پایا، لیکن جانے کیوں میں کبھی اپنے حال سے خوش نہ ہو سکا، اور مطمئن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آج بھی اپنی اس کیفیت سے روز اول کی طرح نکلنے کا خواہش مند ہوں، مصروف ہوں اس کیفیت سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو مجھے ایاز علی نے دکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر تم اپنے اوپر چڑھا بیکاری کا خول نوچ کر پھینک ڈالو گے اور معاشرے کے کام آ کر خود کو معاشرے کا اہم فرد ثابت کرنے میں کامیاب ہوگے تو ایک دن تم سب کو دکھائی دینے لگو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کا درست اور جائز استعمال کرو۔ آج میں ایاز علی کی انہی باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اندھوں اور بوڑھے آدمیوں کو سڑک پار کرا دینا، معذور لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنا، دکھی انسانوں کے دکھ بانٹنا اور بھوکھوں کے آگے کھانا لا کر رکھنا، بس اب یہی میری زندگی کا نصب و لین بن چکا ہے۔ کیا آپ نے آتے جاتے کبھی میری جھلک دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو خدا را اپنا وہم سمجھ کر گردن مت جھٹک دینا، میری آواز سن کر نظر انداز نہ کیجیے گا۔ جس دن آپ میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا یا میری آواز سن لی، بس یہی لمحہ میری نجات کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔